हम्म। मुझे फोटो भेज देना इसका। फोटो भेज दो मुझे। आंसर करो। विद द लिमिट। लिमिट डाल के देखो क्या आ रहा है। हम्म। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने। नहीं नहीं, तुम्हारा ही है। लिमिट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लिमिट डाल के देखो क्या आ रहा है। If you substitute the limit, it is infinity by infinity, ना? So when you have a question involving limits, any limit and it tends to infinity by infinity, you can apply L'Hopital, or else you can use the division by the highest power of x, right? Divide the numerator and denominator by the highest power of x. Highest power of x in this bracket or for this entire term is x cube, x cube into x cube, x to the power 6. In the denominator, the highest power is x to the power 6 again. So you can divide numerator and denominator by x to the power 6, or you can take common also, whichever way you want to do it, try them. या तो डिवाइड कर लो या फिर डिवाइड करके कर सकते हो या फिर कॉमन लेके कर लो. You can take x common
from the root term, it will become root x, and this will be 3 plus 1 by x. This would be root x. This would be 3 minus 1 by x whole raised to power 6. Second bracket also, take x common from root, it will be root x outside, 3 plus 1 by x minus root x common, 3 minus 1 by root x to the power 6 x cube, right? What about denominator? X common, x square common from here. So it will become x outside the root, x square common from the root, it will become x outside the root, like this. Fine. Any doubt till here? Then you can take root x common from this first bracket. It will be x cube because outside you have the power 6, and it is 3 root 3 plus 1 by x plus root of 3 minus 1 by x whole raised to power 6. This is also x cube under root 3 plus 1 by x, and this is under root 3 minus 1 by x to the power 6 into x cube. Hmm? Right. नाराज मत हो. So this is 1 minus 1 by x square. Now in the denominator, you can take x common, x to the power 6 outside. So this is 1 minus 1 by x square to the power 6, x to the power 6 outside, 1 minus 1 by x square to the power 6. अब x to the power 6 कट जाएगा ऊपर नीचे से कॉमन आके. यहाँ से x क्यूब कॉमन आएगा, x क्यूब into x cube, x to the power 6, x to the power 6 कट गया. Now you can put the limit. 1 by infinity and 1 by infinity square would be 0. So wherever you have 1 by x or 1 by x square, that will become 0. देखो क्या आंसर आ रहा है. √3 plus √3 to the power 6. This is √3 minus √3 to the power 6. 1 plus 1 to the power 6. 1 minus 1 to the power 6. ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. 2 √3 to the power 6 divided by 2 raised to power 6. ये कट जाएगा. 3 raised to power 6. No, 3 raised to power 3. 27. None of these. So whenever you have a question involving limits tending to infinity, after substitution of limits, if it's infinity minus infinity, then you rationalize. If it's infinity by infinity, you can divide or take common the highest power of x.
हम्म। 1 ओपन एन। सोचो क्या करना है इसमें। एनीवन, हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन? हम्म। फिर दिस इज इनफैक्ट नॉट ए क्वेश्चन ऑफ लिमिट, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। नहीं, हाँ, जस्ट नोटिस दिस, notice the sequence: 1 by n square, 2 by n square, 3 by n square. So what will be the general term? General term would be r by n square, where r is 1 to n, है ना? And then this is 6 square, this is 1 square, 2 square, 3 square. So it will be r square by n square. And then summation r1 to n. So this series can be written as r by n square, 6 square, r by n whole square, summation 1 to n. And here we have limit n tends to infinity. So this is not a question of a limit. This is a question of definite integration. Definite integration में कैसे convert होगा? Integration is nothing but adding up areas, you know. If you remember, integration में क्या होता है? This is y, this is dx. So when you integrate, you basically sum it up and then convert summation into integration sign. So basically integration is adding up areas. So we are adding up areas here. तो इसमें जो तुम्हें याद करना है ऐसे क्वेश्चंस में, समेशन को यू कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन। एंट्रेंस में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। जहां भी r बाय n आएगा उसको रिप्लेस करना है x से,
और जहां भी 1/n आएगा, बिकॉज n टेंस टू इन्फिनिटी, 1/n टेंस टू 0, तो ये तीन सब्स्टिट्यूशन करने हैं. कन्वर्ट समेशन इनटू इंटीग्रेशन, convert r by n into x, and wherever you have 1 by n, independently convert into dx. लिख लो ये. तो जब हम ये यूज करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ r बाय n इंटू 1/n, है ना? तो r बाय n तो x हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और जो एक 1/n बचेगा उसको मैंने dx में कन्वर्ट कर दिया. सो इट इज, दिस समेशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब क्वेश्चन है द लिमिट. लिमिट यहां से आएंगी, एक्स इज इक्वल टू आर बाई एन है. अब आर की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है? व्हेन आर इज 1, व्हाट विल बी एक्स? 1/n. एन तो इन्फिनिटी है, 1/infinity 0 हो जाएगा. सो द लोअर लिमिट विल बी 0. व्हाट अबाउट अपर लिमिट? आर की अपर वैल्यू कितनी है? एन. सो एक्स विल बी आर बाई एन बाई एन से एन कट जाएगा, अपर लिमिट आ जाएगी 1. सो दिस इंटीग्रेशन वुड बी 0 to 1. सो पूरे सीक्वेंस को, पूरे समेशन को हमने सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लिया. नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस. कैसे इंटीग्रेट करोगे? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर को टी डाल दो, तो 2x dx इज इक्वल टू dt. x dx would be dt by 2. So this integral would be 1/2 out. Limit will remain 0 to 1. Sec squared t dt. What is integration of sec square? Tan t. Limits 0 to 1. Answer is 1/2 tan 1. So the answer is this. So some questions which appears to be question of limit are basically question of definite integral. एक और ऐसे क्वेश्चन करते हैं. इसमें सर हम्म. आर जब 1/n था, मतलब हम्म. तो उसको 0 कैसे किया? आर की वैल्यू 1 है, लोअर लिमिट. तो जब आर 1/n होगा तो 1/infinity कितना होगा? ठीक है। ठीक है. और जब आर की वैल्यू n होगी, सो विल बी n/n विच इज 1. सो अपर लिमिट विल बिकम 1. ओके. यस सर। सो वन मोर क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा था. सिमिलर क्वेश्चन एक और करते हैं. लिमिट n टेंस टू infinity, 1 to the power p, 2 to the power p, 3 to the power p, n to the power p, whole divided by n to the power p plus 1. So this is not a question of limit again, it is question of definite integral. कर लो उसको.
राइट द जनरल टर्म, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा. सर आंसर ए है। शायद, देखता हूँ मैं भी. इसकी जनरल टर्म क्या आ रही है? आर टू द आर। पावर पी बाय एन टू द पावर पी प्लस वन, है ना? हम्म। आर को वन डालेंगे फर्स्ट टर्म, आर को डालेंगे सेकंड टर्म, एंड सो ऑन. हम्म। आर की वैल्यू वन से लेके एन तक, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी. अब आर वन टू एन, आर टू द पावर पी ओवर एन टू द पावर पी, वन बाय एन अलग ले लो, कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर पी, ये हो जाएगा डी एक्स. लिमिट्स कैसे आती हैं? लिमिट्स आएंगी एक्स इज इक्वल टू आर बाई एन से. जब आर की वैल्यू वन होगी तो एक्स हो जाएगा वन बाई एन, एन इज इन्फिनिटी विच इज जीरो. जब आर एन होगा, एक्स वुड बी आर बाई एन विच इज एन बाई एन, वन हो जाएगा. जनरली लिमिट जीरो टू वन होती है, कई क्वेश्चंस में जीरो टू टू भी आ सकती है, बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म्स आर टू एन. तो अब एक्स टू द पावर पी प्लस वन ओवर पी प्लस वन, लिमिट डाल दो अब. आंसर इज ए. ऑप्शन इज करेक्ट. सर हम्म. सो तो जब ने जो अलग से 1/n लिखा था वो क्या हुआ? डी एक्स. जी। वन बाय एन को डी एक्स डालते हैं ना, बिकॉज डी एक्स इज टेंडिंग टू जीरो. वन बाय एन, एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वन बाय एन विल टेंड्स टू जीरो. और डी एक्स में ओके मालूम है टेंस टेंस टू जीरो होता है. तो ये साइन कॉस के एक्सपेंशंस तो नहीं है ना? नहीं. यू हैव साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, यू कैन यूज दैट, है ना? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता है.
नहीं, जरूरत भी नहीं है, कुछ और सोचो। We know that sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. हमें pi by 2 ऑलरेडी दे रखा है, ये cos inverse x है, ये sin inverse x है. That means this term should be equal to this term because both should be x. That is x minus x square by 2 plus x cube by 4 minus so on. This is x square minus x 4 by 2 plus x sixth by 4. ये दोनों सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट जीपी हैं? इज इट अ जीपी और नॉट? लेफ्ट साइड वाला चेक करो. दिस इज अ जीपी, इनफाइनाइट जीपी. इसका फर्स्ट टर्म क्या है? कॉमन रेशियो, है ना? व्हाट अबाउट दिस? दिस ऑल्सो इनफाइनाइट जीपी. फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर कॉमन रेशियो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2. इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाओ. सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना होता है? a over 1 minus r. Use this and you had your answer. Use sum of infinite GP. सर x 1 है। 1 आ रहा है. So x over 1 minus r, x square over 1 plus x square by 2, x plus x cube by 2, x square plus x cube by 2. कट जाएगा. x minus x square is equal to 0. x common, 1 minus x is equal to 0. एक वैल्यू 1 आ रही है, दूसरी 0 आ रही है. ऑप्शन में 0 नहीं है तो 1 आंसर आ गया. ये आंसर है इसका. वी यूज साइन इनवर्स एक्स. वो एक सोल्यूशन कट जाता है तो कॉमन लिया करो हमेशा. अगर ऑप्शन में 1 नहीं होता, 0 होता, तो वो भी सोल्यूशन हो सकता था. तो कैंसिल नहीं करके लेफ्ट में लेके उसको फिर कॉमन ले लो.
सर एक बार पिछली स्लाइड पे जाना वापस। हो गया सर। N1 to 23 summation cot inverse 1 plus summation K1 to N 2K. समेशन से घबराना मत, ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले अंदर वाला समेशन सॉल्व करो। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टाइम भी लगेगा, 10 मिनट भी लग सकते हैं। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन जल्दी जाएंगे, 2 मिनट में भी हो जाएंगे। हम्म, क्या है ना? हाँ, सबसे अंदर वाला समेशन सॉल्व करो पहले। Sum of first natural numbers is n into n plus 1 by 2। इवन में 2 कॉमन ले लो, n into n plus 1 by 2। हम्म, summation k, where k is 1 to n, is always 1 plus 2 plus 3 till n. Sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. Summation of k square 1 to n, 1 square, 2 square, 3 square till n square is n into n plus 1 2n plus 1 by 6। ये बिल्कुल याद कर लो। Summation k cube 1 to n is 1 cube, 2 cube, 3 cube, n cube, n into n plus 1 by 2 to the power whole square। Summation of 2k minus 1, 2k minus 1 का मतलब first n odd numbers is always n square।
ये रिजल्ट बिल्कुल याद होने चाहिए। तो समेशन में से कांस्टेंट टर्म बाहर आता था, 2 यहाँ पे बाहर निकालो, समेशन के तुम्हें मालूम है कितना है। ये जगह 1 + 2 बाहर था, समेशन के हो गया n × n+1/2, राइट। 2 से 2 कट जाएगा। हम्म। ये हो गया। अब सोचो क्या करना है। या तो n की वैल्यू 1 से लेके 23 सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर देखो क्या करोगे। n को 1, n को 2, n को 3, n को टिल 23, उसका फिर समेशन करना है। थिंक लाउडली। ऑल दीज आर आईटी एडवांस क्वेश्चंस जो कि मोस्ट लाइकली आ सकते हैं। You know this result? Tan inverse x is cot inverse 1 by x and vice versa. Sin inverse x is cosec inverse 1 by x, है ना। sec inverse x is cos inverse 1 by x। तो मैं इसको tan में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज tan की आइडेंटिटी होपफुली तुम लोगों को मालूम है। ये का tan इनवर्स 1/1 प्लस n × n+1, राइट। ये आ गया। अब इफ इसको अगर ऐड करना पड़ा 1 से लेके 23 तक, तो कोई सीक्वेंस बनेगी ही नहीं, उसको ऐड नहीं कर सकते, राइट। सो दिमाग में घंटी बजनी बजनी चाहिए कि दैट मीन्स इट शुड टर्न इनटू सम काइंड ऑफ सीक्वेंस, जिसमें होता है ना टेलीस्कोपिक सीरीज होती है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाती है, बाकी कुछ कट जाता है। वैसा कुछ ट्राई करते हैं इसमें, ठीक है। वरना 23 टर्म तक ऐड करना टैन इनवर्स के फॉर्म में बहुत डिफिकल्ट है। यू कैन अप्लाई टैन इनवर्स यू नो फिर tan 20। इनवर्स n + tan इनवर्स 1 बन जाएगा। हाँ, तो इसको कन्वर्ट करो। So you can write n+1 minus n/1 plus n × n+1। देखो जरा, हमने इसको रीअरेंज कर दिया। न्यूमरेटर में जो 1 है उसको मैंने लिखा n+1 माइनस n। पहले कॉट इनवर्स को 1/tan में किया, n ऐड किया, n सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ यू नो दिस आइडेंटिटी, tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y is tan इनवर्स x minus y/1 plus x। हमने रिवर्स यूज कर लिया, ठीक है। अनुज, रिन, Yes, sir. so this becomes cot inverse of summation 1 to 23 tan inverse n+1 minus tan inverse n। We use it reverse way, like we had this, we convert to this। अब तुम 1 डालो एक बार इसमें, क्या आएगा। अच्छा, बाहर तो कॉट बैठा हुआ था ना, इट्स नॉट कॉट इनवर्स, दिस इज कॉट। सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट 1, क्या आ रहा है। First bracket would be tan inverse 2 minus tan inverse 1। मैंने n को 1 डाला, प्लस साइन n को 2 सब्स्टिट्यूट करो, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। 3 सब्स्टिट्यूट करो, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। बाकी घर पे मम्मी के साथ बैठ के कर लेना। लास्ट 2 टर्म बताओ मुझे क्या होगी। tan इनवर्स 22 डाल के आ रहा है,
tan inverse 22 डाल के 23 minus tan inverse 22, and the last term would be tan inverse 24 minus tan inverse 23. अब जरा देखो कुछ हो रहा है तमाशा. इज इट टेलीस्कोपिक सीरीज? कैंसिलेशन हो रहा है. ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये कटता जाएगा खेल. ये इससे कट जाएगा, इससे पहले वाले से ये कट जाएगा. So you'll be left only with first and the last term. So basically this will reduce to it'll be tan inverse 24 minus tan in नहीं, हाँ वापस tan inverse की आइडेंटिटी लगा दो. This identity you remember, tan inverse x minus y over 1 plus xy. तो ये आएगा cot of tan inverse 23/25. tan inverse को रिवर्स कर दो, cot inverse आ जाएगा, cot inverse से cot कट जाएगा, आंसर वुड बी 25/23. ये इसका आंसर आएगा. तो मैथ्स में मार्क्स लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. चाहे जे पेपर 1 हो चाहे जे पेपर 2 हो, मैथ्स वुड बी द टफेस्ट. लिख लिया सब लोगों ने? ये 1/2 है, 0 to 1/2. It is integer type question. 0 to half 1 plus root 3 x plus 1 whole square minus 1 minus x to the power 6 whole raised to power 1/4. कर लो. सोचने में ज्यादा टाइम लगा ना, करने में उतना ही कम टाइम लगेगा. Think loudly, it'll take less time. सर लिमिट 0 से 1/2 है. बिल्कुल सही कहा तुमने. दिखाई दे रहा है इसका आंसर तुम्हें? मैंने कहा तुम क्लास में वैसे तो आती नहीं है, तो यहीं पे ऑनलाइन कर लोगी कम से कम. नहीं, सर प्री बोर्ड चल रहे थे इसलिए नहीं आ रही थी. बस कितने साल से प्री बोर्ड चल रहा है तुम्हारा? बहुत दिनों से नहीं आ रही तुम क्लास से. वो तो बाहर है, कांस्टेंट सही करा. नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं हो पाएगा. टू द पावर 6 है, वो कैसे करोगे? कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तुम्हें. सोचो उसमें तो पहले. थिंक लाउडली. लगाओ टाइम, उसमें सोचने में टाइम लगाओ.
सिमिलर क्वेश्चन शायद हमने किया भी था एक, इनडेफिनिट का था वो शायद वो, हाँ। नहीं, टू द पावर 6 है। क्यों सर? हाँ सर ये ऐसे सिंपलीफाई हो गया कि एक फैक्टर डिनोमिनेटर का रूट में हो गया, एक नॉर्मल हो गया। हाँ, ऐसे कर सकते हो। उससे आगे क्या हुआ? फिर सब्स्टिट्यूशन करो, देखो। तुम क्या, खोल के कैसे कर लोगे इसको? फिर नहीं नहीं नहीं, वो तो फ्रैक्शनल पावर हो जाएंगी सारी। नहीं, उससे फायदा नहीं है कुछ। ये टू द पावर 1/4 है ना ये। तो अगर मैं x+1 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं यहाँ पे, तो कुछ फायदा हो रहा है क्या? 1 + x⁸ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, नहीं 6 से करूं मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा? 8। 8 होगा, 4 होगा, 8 होगा। जरा देखो ये स्टेप समझ में आ रही है? फिर 1 + √3 बाहर है, 0 to 1/2 dx, ये बाहर आ जाएगा टू द, ये बन जाएगा 1 + x² अब हमें एक चीज वेरीफाई करनी है कि जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसका डेरिवेटिव अगर ये आ जाता है तो हमारी बात बन जाएगी। ये कितना हो गया? 6/4। इसको टी डाल के देख लो, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट की टर्म को, अगर इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा देन वी कैन मेक द सब्स्टिट्यूशन, अदरवाइज हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार ट्राई कर लो। एक्सक्यूज सर। हम्म। सर मैंने सिंपली पावर को अंदर ले गया हम्म। और फाइनल मेरा आ रहा है 1/√1 - x² × 1/x। ठीक है। इससे आगे कर सकते हैं? उससे भी उसमें दो बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर मैं टी लेट करता हूँ, इफ 1 - x और 1 + x को टी लेट करता हूँ, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। डिफरेंशिएट करके देखो, इसका डेरिवेटिव 1/1/x² आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर 1/1 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। उसमें ना रायन दो बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, ऐसे कुछ आ रहा है ना तुम्हारा। और हाँ फिर जी इसमें सर। पावर भी 3/2 आ रही है। वो जो क्वेश्चंस होते हैं इंटीग्रेशन के, वो इस टाइप के होते हैं। a√b, a and b both are linear, a is quadratic, b is linear, a and b both are quadratic, बट यहाँ पे तुम्हारी पावर 3/2 आएगी, वो नहीं हो पाएगा। ये वेरीफाई कर लो, इसका डेरिवेटिव 1/1 + x का होल स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा? अगर वो आ रहा है तो फिर काम हो जाएगा हमारा। सर आंसर 2 है। आ रहा है, गुड। हाँ। तो उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? न्यूमरेटर -2/1 -1, + x। 1 + x, देन माइनस साइन, 1 × 1 - x ओवर 1 + x का होल स्क्वायर, dx = dt। तो कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। ओके, तो -2 dx/1। ठीक है, मेक द सब्स्टिट्यूशन नाउ। सो dx/1 + x का होल स्क्वायर को रिप्लेस कर दो -dt/2 से। तो ये हो गया, 1 + √3 बाहर था। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट हम एंड में वापस सेम डाल दें क्या, ये चेंज कर लें लिमिट? लिमिट चेंज कर लो, x को 0 डाल के कितना आ रहा है? 1, हाफ डाल के
½/3/2 1/3 नहीं, वो हाफ हाफ अपन 3/2 तो कितना हो गया 1/, ठीक है। 1/3 है। ओके, सो -dt/2 t⁻³ ठीक है, कर लो इंटीग्रेट, हो गया अब तो ये। तो वेक्टर 3D के क्वेश्चन बड़े लेंदी लेंदी आ रहे हैं आजकल, इट्स ऑफ लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस। यस, दैट्स करेक्ट, and your answer is correct. हो गया सभी का, गरिमा हो गया, तो हो जाना चाहिए। माइनस बाहर ले लो, 1+√3/2 t⁻³ हो गया, तो t⁻⁻½ by -½ हम्म, तो ये -½ तो कट गया, दिस विल कैंसिल, 1+√3, दिस इज 1/√t, लिमिट 1 to 1/3, 1+√3 लिमिट्स 1/3 डालोगे तो कितना आएगा, √3 -1, so 3 - 1, answer is 2. Yes, आराध्य आंसर इज करेक्ट। सभी का हो गया, क्लियर हो गया ये। अगर बाई चांस ऐसे नहीं आता फिर हम कुछ और सोचते, मे बी वुड विल टेक 1 - 6 आउट, देन इसको फिर हम क्या सोचते, x+1 का स्क्वायर ओवर x, 1 - x का स्क्वायर, 1 - x⁸ उस केस में हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, तो शायद उससे डेरिवेटिव आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
whenever in a question limit is minus a to a, the first thing you look for odd even function. फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स डाल के देखो ऑड इवन फंक्शन है या नहीं है. रिप्लेस x बाय माइनस एक्स. अगर सेम फंक्शन आएगा तो इवन हो जाएगा, नहीं आएगा माइनस आएगा तो ऑड हो जाएगा, अगर दोनों नहीं आएंगे तो नीदर हो जाएगा. ऑड इवन विल नॉट वर्क. सर इसमें तो लेकिन अगर x की जगह माइनस एक्स डाला ई पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो राइट. उसको प्लस माइनस कैसे डिटरमिन होगा कि ऑड है या इवन? नहीं तो ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है, दे नॉट इक्वल. बिकॉज ये तो सेम रहेगा. दिस विल बी 1 प्लस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स. So fx will not be equal to f of minus x. That means it's neither. If I replace x by minus x, I'll get 1 over 1 plus e to the power minus sin x, जो किसके इक्वल नहीं है ना. माइनस कॉमन निकाल के आ रहा है इक्वल. दैट मीन्स एफ एक्स इज नीदर इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स नॉर इट इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स. मतलब ऑड इवन की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी. अगर ये ऑड होता देन माइनस ए टू ए जीरो हो जाता. यू नो दिस रिजल्ट ना. अगर इवन होता देन दिस वुड हैव कन्वर्टेड इनटू 2 times 0 to a f of x dx. So what we do? Another property you can use is f of a plus b minus x. ये use करो. Apply this property. Take this as equation 1. जहां भी x आ रहा है उसको तुम लिखोगे माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स. माइनस एक्स हो गया. ठीक है, तो ये कट रहा है. That means after using this property, it will be minus pi by 4 to pi by 4 dx 1 minus e to the 1 plus e to the power minus sin x. अब 1 and 2 को ऐड कर दो, but for that you have to make their denominator same. e to the power minus sin x को लिखो 1 over e to the power minus sin x. LCM ले लो उसका. और फिर 1 plus 2 कर दो. मतलब you have this term, इसको लिखो 1 over 1 plus e to the power sin x. एलसीएम ले लो और फिर चुपके से ऐड करो. सो इक्वेशन 2 इज बेसिकली दिस. अब 1 and 2 have the same denominator, so you can add them. ऐड करके देखो क्या आ रहा है. 2 पाई बाय दोनों में है. इसमें भी 2 बाय पाई है. Limits are identical, so these two can be added.
So take 2 pi by common and add. So this is 1 plus e to the power sin x. टू माइनस कॉस टू एक्स। कुछ हो रहा है? ये कट जाएगा। Now it's integrable. हाँ, टू भी काट दो। एंड नाउ इट्स इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी भी लग सकती है। अब ये इवन फंक्शन है, ये तो टू काट ही सकते हैं। एट द सेम टाइम नाउ इट इज इवन फंक्शन, so I will be 1 by pi 2 times 0 to pi by 4 dx 2 minus cos 2x. How would you integrate it now? कैसे इंटीग्रेट करोगे, कोई बताएगा? कॉस टू एक्स को cos 1 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख के। हाँ, वो भी कर सकते हो, या साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करके ऊपर नीचे tan से डिवाइड कर दो, एक ही बात 2 में। sin square x minus 1 0 to pi by 4 cos 2x you can write as 1 minus 2 sin square x, and then dividing numerator and denominator by cos square x. कर लो पूरा। After this is 1 plus 2 sin square x, dividing numerator and denominator by cos square x. Otherwise डायरेक्टली तुम इसको tan में भी लिख सकते थे। So this would be 2 by pi dividing numerator by cos square x, हो जाएगा sec square x. This would be sec square x, which you can write 1 plus tan square x. And then tan square x, sec square x हो गया 1 plus tan square x. अब tan x को t सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करो। tan x is equal to t. So now the substitution, tan x is equal to t. तो 2 by pi लिमिट 0 to 1 हो जाएगा।
dt by 1 plus 3t square. How to integrate this? प्लीज फॉर्मूला लेके Yes, standard formula. तो डिवाइड करना भूलना मत. ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? स्टैंडर्ड इंटीग्रल. एनीवन? T square plus 1 square. a square plus x square, right? 1 by a tan inverse. 1 by tan inverse x by. Hmm. So I will be 2 by 3 pi 1 by a. A is 1 by root 3 tan inverse x by 8. T divided by 1 by root 3. Limits 0 to 1. So this is 2 by root 3 pi. When you put the limit, it's tan inverse root 3 minus tan inverse 0. What is tan inverse root 3? tan किस एंगल पे रूट 3 होता है? 60 पे. π/3. So the long question. अब क्या पूछा था उसने? ट्वेंटी सेवन आई स्क्वायर की वाली थी ना. अच्छा तो आई स्क्वायर कर दो अब इसको. आई स्क्वायर वुड बी पाई से तो पाई कट गया 4/27. So 27 आई स्क्वायर इज 4. 4 मार्क्स के लिए 4 आंसर लिखना पड़ेगा. This was the integration. एक एरिया वाला क्वेश्चन कर लो. ये अब जो गरिमा एक टाइप का क्वेश्चन अब आएगा नहीं वैसे. एनीवेज हाँ. ये कौन से साल का है? 20. हाँ. ये अब 2 या 3 कर्व्स के बीच के एनक्लोज फिगर तुम्हारे सिलेबस में नहीं रही ना. इट इज. हाँ वो कर सकते. वो भी टैंजेंट का क्वेश्चन है. टैंजेंट इज आल्सो डिलीटेड. टैंजेंट नॉर्मल आर डिलीटेड. इसको छोड़ो. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के करना बिकॉज टैंजेंट नॉर्मल इन कोनिक सेक्शन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस क्वेश्चंस क्यूब रूट्स ऑफ क्वेश्चन वो भी सब आउट ऑफ सिलेबस है. सारा छोड़ देना अब वो नहीं आएगा. देन प्लेन के बहुत सारे क्वेश्चन 3D में हैं. एंट्रेंस में प्लेन ही आता तब वो सारा डिलीट हो गया. प्लेन इज नॉट देयर इन द कोर्स.
प्लस। This is general equation of circle. Its center is minus g minus f. Radius is under root g square plus f square minus c. ये है। भव्य कल फिजिक्स क्लास करनी है? सो वही सर अच्छा है भी। है। बता देना मुझे। कुछ लोग गायब हो गए ना। ग्रुप में डाल देना गरिमा। कल फिजिक्स क्लास का करना है नहीं करना है कल? सर्कल का सेंटर आइडेंटिफाई करो। सर्कल का रेडियस निकालो। सेंटर क्या होता है इसका? माइनस जी माइनस एफ है ना। फिर देखो क्या हो रहा है। शनाया से तो पूछा ही नहीं मैंने। शनाया तो वैसे ही बीमार है। क्या हुआ शनाया? तबीयत ठीक है? ठीक है, मैथ्स गला क्वेश्चन के बाद तो ठीक हो गई हो अब? क्या आ गया? क्या रहा है सेंटर सर्कल का? 1 -2 एंड रेडियस √2। √2। इसका फोटो बनाओ जरा। सर्कल का रूट √2 है। और center x coordinate 1 is here and this is 1 -2. But the circle is intersecting x axis, sorry y axis है ना। रेडियस इसका √2 है ना। This radius is √2. This is also √2. This is √2. देखो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। द की पॉइंट इज दैट साइड ऑफ द स्क्वायर हैज टू बी पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दिया हुआ है। जो ऑप्शन देख रहे हैं उनको एक बार नजर डालो क्या है। 1 + √2 -2 कहाँ होगा इस सर्कल पे? 1 + √2 -2 कहाँ होगा? 1 + √2 ये 1 है। इसमें मैंने √2 ऐड कर दिया। ठीक है। तो ये पॉइंट है 1 + √2 -2। जस्ट देखो जरा इसको। बिकॉज ये तो दिस हाइट इज एज इट इज -2 ना। सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट -2 है ना शायद। दे रखा है। हाँ बस सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। नहीं टच नहीं करेगा। √2 रेडियस से टच तो तब करता है रेडियस। मतलब एक ये तो बात पक्की है कि दिस कोऑर्डिनेट इज ओवर हियर। तो अब जरा देखो कि इस वर्टेक्स को लेके कैन यू ड्रॉ अ स्क्वायर जिसका साइड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हो ही नहीं सकता। टेकिंग दिस एज वर्टेक्स you can't draw
a square whose side is parallel to the coordinate axis. ये तो बाहर निकल आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब ऑप्शन ए इज गॉन. What about 1 minus root 2 comma minus 2 would be here. तो 1 minus root 2 comma minus 2 is this. इसको भी वर्टेक्स लेके वी कैन ड्रॉ अ स्क्वायर. हाँ, तो इसको भी अगर हम चूज करें एज वन ऑफ द वर्टिसेस, तो स्क्वायर की साइड कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है. व्हाट अबाउट थर्ड वन? थर्ड वन है 1 x कोऑर्डिनेट 1, मतलब यहाँ पे, एंड y कोऑर्डिनेट माइनस, नहीं ये नहीं होगा, इट वुड बी दिस. द थर्ड वन इज दिस, ये वाला पॉइंट होगा. 1 कॉमा माइनस 2 प्लस रूट टू ऐड हो रहा है ना माइनस 2 में, तो ऊपर जाएगा वो. सो दिस पॉइंट वुड बी अबव. तो इसको भी वर्टेक्स लेके वी कांट ड्रॉ अ स्क्वायर whose sides are parallel to the coordinate system. आंसर इसका आएगा none of these. The answer is none of these. ठीक है. एक्सट्रीमम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू. एंड पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 कौन सा होगा? ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e. 5 अननोन है इसमें, तो यू नीड टू फाइंड दीज 5 अननोन्स. तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो और एफ ऑफ पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 को 0 डाल दो, बिकॉज 1 पे मैक्सिमा आ रहा है. फोर ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस डी. डेरिवेटिव आ गया. सिंस इट हैज ए मैक्सिमा एट 1, तो p डैश 1 0 होगा. तो 4a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d इज इक्वल टू 0. इट हैज ए मैक्स एक्सट्रीमम एट x इक्वल टू 2, तो p डैश 2 भी 0 होगा. सो 32a 12b प्लस 4c प्लस d इज इक्वल टू 0. दो इक्वेशन तुम्हारी ये बन गई. 5 अननोन है, वी नीड टू सॉल्व इट दैट वे. दूसरा तुम लिमिट को सॉल्व करोगे, 1 कांस्टेंट है, 1 को राइट में ले जाओ, ये 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा. पॉलिनॉमियल को सब्स्टिट्यूट कर दो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा. राइट साइड 1 है जो कि फाइनाइट लिमिट है, लिमिट इज फाइनाइट, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आना चाहिए.
जरा लिमिट डाल के देखो क्या आ रहा है। इसमें अगर तुम लिमिट डालोगे तो आएगा सारी टर्म जीरो, ई बाय जीरो आएगा, बट लिमिट तो फाइनाइट है, वो तभी पॉसिबल है ई जीरो होना चाहिए। सी, लिमिट एग्जिस्ट एंड इट्स वन, सो शुड बी जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो ई की वैल्यू जीरो आ गई, ई को हटा देते हैं। एज लिमिट एग्जिस्ट, इट्स फाइनाइट इक्वल टू वन, इट शुड बी जीरो बाय जीरो फॉर्म, ये हट गया। अब कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन लेके काट दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक्स कॉमन लेके काट दिया तो एक्स क्यूब आ गया, बी एक्स स्क्वायर आ गया, सी एक्स आ गया, डी आ गया। वापस लिमिट डालो, एक्स काटने के बाद लिमिट डाली तो क्या आ रहा है, डी बाय जीरो इक्वल टू वन, बट शुड बी, लिमिट है वन तो शुड बी जीरो बाय जीरो फॉर्म, मतलब डी की वैल्यू भी जीरो आ गई। डी को जीरो डाल दिया, डी को जीरो डाल के अब क्या हो रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, डी का हैप्पी बर्थडे हो चुका है। वापस एक्स कॉमन आके कट जाएगा, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी जीरो नहीं होगा, एक्स कट गया ना। अब लिमिट डाल दो, द मोमेंट यू सब्स्टिट्यूट द लिमिट, ये जीरो, सी की वैल्यू वन आ गई। सो दिस इज हाउ यू फाइंड अननोन। इसमें डी जीरो डाल दो, सी की वैल्यू वन डाल दो, 32A 12B, सी की वैल्यू वन। ये 4 से डिवाइड भी हो रहा है ना, क्या आएगा ये, 8A 3B प्लस वन। इसको सॉल्व कर लो, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, यू हैव ऑलरेडी सी विद यू, डी ई जीरो हो चुके हैं, फंक्शन आ जाएगा, और फिर उस पॉलिनॉमियल में एक्स को 2 सब्स्टिट्यूट कर देना। इट वाज आईटी एडवांस 2000, पुराना क्वेश्चन है ये भी, 2009। इस टाइप के अभी भी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, रिसेंट आया हुआ है जेई में भी ऐसा। इसका आंसर जीरो है, पी ऑफ टू इज कमिंग आउट टू बी जीरो। ठीक है, एंडिंग द क्लास, मोर क्वेश्चंस, इसको फिनिश कर लेना घर पे। आंसर टू है, आंसर जीरो है इसका, पी ऑफ टू इज जीरो। एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम।